Good morning, friends. Today we are going to start a new chapter, Function of Management. Function of Management. In the previous chapter, already we have seen the meaning and nature and principle of management. Okay, so we will see the function of management here. There are two type of functions. First one is managerial function, and second one is operative function. Okay, my dear students, under managerial functions there are so many things. First one is planning, organizing, staffing, directing, controlling, reporting, budgeting. These all are the managerial functions, means which is performed by the managers, which is performed by the board of directors, which is the performed by the top level authority. Okay, so this is the managerial function. And operative functions means production, sales, financing, purchasing, marketing. These all are the operative functions: purchase, sales, productions. So these all are the production operative functions. Okay, my dear students, so managerial functions we will study, not the operative functions. We will not study. Okay, we will study managerial function. So POSDCRB. Okay, means, so first of all we will do the plan, and then after we do under organization, then we appoint this staff, and then we direct to the staff, then we control the each and everything inside or outside of the resources. Okay, then reporting also, we what reporting means feedback, what the is going on, what the thing is going on in the on the ground level. Okay, POSDCR. And last one is budgeting, from where we will collect the fund, from where we will perform the activities, all these things. This is the POSDCRB. These all are the managerial functions. Please learn. Okay, my dear students, so you can see here. So today we are going to see, first thing is planning. Under planning there are so many things which comes under planning: forecasting, decision making, strategy formulation, policies making, programming, scheduling, budgeting, problem solving, innovations, investigations, and research. Means in all these sectors we get the need of plan. Okay, we need the plan. So these all are the things where we need the do the planning. Okay, so we first of all we will understand how planning, these all are the chapters, one a single chapter, a separate chapters which we will study in the next your next chapter is planning. Okay, you can see here, next chapter is planning your, and then organizing, then staffing, then directing, and the controlling in next chapter. Okay, so we will discuss very describably in the next chapter, but here we will understand the only the functions. Okay, so see here, planning: what to do, how to do, when to do, what to do, who to do, and where to do. Means it is deciding, means who will, what to do, kya karna hai. पहले the identification of the problem. Okay, identification of the objectives. Second, how to do, what type of method we will follow for doing the for performing the activities. Third one is when to do, when we will perform the activities. Fourth one, who to do, who is the eligible persons, at which level the activity will perform. Okay, where to do means the location, proper location should be clear. Okay, so proper location should be okay now. So planning is this. Okay, now means all these activities we will perform under planning. So see here, under planning there are so many things. There are features. Okay, definitions. Planning is the what? Planning is the such type of course of actions where we select the best alternative, where we select the best फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस में हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट प्लान, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, वही मेरा क्या होता है, सबसे बेस्ट प्लान होता है. ठीक है ना. तो सब मतलब सो मेनी अल्टरनेटिव्स में से सो मेनी
जो भी रिसोर्सेज होते हैं या जो भी साधन होते हैं, उन सब साधनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं काम करने का, वही मेरी प्लानिंग होती है, ठीक है ना। उसी को हम प्लानिंग कह सकते हैं। अच्छा देखिए क्या है फीचर्स, क्या है, प्लानिंग सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, पहले ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। प्लानिंग के कि द गोल शुड बी, द एम शुड बी डिटरमाइंड बाय द organizations. Okay, see here, second one is planning is oriented towards and the future. Planning determined according to the future based on present and past, and it should be forecasted for the future. Planning is the mental exercise getting, planning involves choice from among alternative course of actions, ठीक है ना। क्या है, choice from the best, क्या है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस में। ओके, प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस, प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग इज ऑल प्रोडिविडिंग, मतलब एट ऑल लेवल वी गेट द प्लान, हमें हर लेवल में प्लान की जरूरत पड़ती है। ओके, फिर क्या है, प्लानिंग इज डायरेक्टली टुवर्ड्स एफिशिएंसी, प्लानिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। स्टेप्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि सारे ये स्टेप्स ये सारे चैप्टर्स में अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं, और इस चीज़ को हम वहाँ पे अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पहले क्या है, collecting information about past, present, future and forecast. Second one is defining objective, developing planning premises. Fourth one, discovering alternative course of action. E, evaluating an alternative, choosing the best alternative. G, defining subsidiary plans, and periodic review and revisions of plan. ये सारे स्टेप्स हैं, इनको हम अच्छे से हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आए तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा प्लानिंग अपने आप में एक अलग चैप्टर है जो आपको आगे दिया हुआ है, जिसको हमको पढ़ेंगे आगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, ये सब सारी चीज़ें भी दी हुई हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं बहुत शॉर्ट में, इन अ वेरी शॉर्ट। ओके, प्लानिंग फोकस अटेंशन ऑन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज अनसर्टेनिटी रिस्क, रिस्क को कम करता है। प्लान अगर पहले से प्लान हो तो कोई भी रिस्क हो तो हम उसको क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। प्लानिंग हेल्प टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को इम्प्रूव करता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। प्लानिंग अवॉइड्स कन्फ्यूजन एंड केओस, कन्फ्यूजन और झगड़े को क्रिएट अवॉइड करता है। प्लानिंग इनकरेज इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी, इनकरेज करता है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, प्लानिंग सर्व एज द बेसिस ऑफ कंट्रोल। Then limitations, lack of accurate informations, time consuming, expensive, right, rigidity due to strict compliances and with plans, stifles initiative and creativity, psychological barrier and unwillingness of people to change, external limitations, change in government policies, technologies, labor unions, market conditions, competitors action and etc. are natural committees. ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, लिमिटेशंस हैं जो प्लानिंग को प्रभावित करती हैं। अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं रहता है तो हम गलत प्लान बना देते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, ये प्लानिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, टाइम कोई भी प्लान करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, रिजिडिटी होती है, मतलब फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो कभी कई बार चीज़ें आ जाती हैं, स्टिफल्स हो जाता है, इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी नहीं हो पाती है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, एक मानसिक दबाव होता है बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नल लिमिटेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, बाहरी दबाव भी होता है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमको काम करना पड़ता है। तो ये क्या है, सब सारी चीज़ें लिमिटेशंस हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब फिर हम देखेंगे क्या, ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, हेनरी फोल ने एक अच्छा डेफिनेशन दिया है, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस मीन्स टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। तो इस तरीके से आप एक चीज़ को कर सकते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन है ओलिवर शेल्डन का, क्या है, इन्होंने कहा है क्या, organization is the process of so combining the work any individual of groups have to perform with the facility necessary for its execution, that the duties so perform provide the best channels for efficient, systematic, positive and coordinated application of available efforts। मतलब क्या है, एक छत प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन बना के, जहाँ पे हम चीज़ों को असाइन करें, मतलब पहचानें और
फिर उसके हिसाब से हम काम करें, क्या हमारी नीड है, क्या हमको परफॉर्म करनी है, और जो भी हो एक छत के नीचे, एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बने और उसको हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या है, हम आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव तो मेरा क्लियर रहता है, तो हम पहले एक्टिविटीज़ को, मतलब क्या हमको परफॉर्म करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़। सेकेंड वन इज ग्रुपिंग एक्टिविटीज़। हम उस टाइप की एक्टिविटीज़ को क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है ना। फिर थर्ड क्या है, असाइनिंग एक्टिविटीज़। फिर हम उस एक्टिविटीज़ को असाइन, उस तरह की एक्टिविटी को क्या करेंगे, असाइन कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर डेलीगेटिंग ऑथोरिटी, जो उसके लिए ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबल हो और अकाउंटेबल हो, विच ऑथोरिटी इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, हम उसको क्या करते हैं, उस चीज़ को फिर डेलीगेट कर देते हैं और उसको परफॉर्मेंस उस तरीके से हम चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी देख लेते हैं। A sound organization contributes to success the business in the following ways. First one is organization is the mechanism through which management directs, control and coordinates with the activities of the enterprises. Clear ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज़ है, एक मैकेनिज्म है क्या, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस को, ठीक है ना। सेकंड, साउंड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड diversifications by proper delegation of authority. साउंड डेलीगेशन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ होते हैं, क्या होती है, जल्दी से ग्रोथ होता है, बहुत सारे डिफ्रेंशिएटिंग होती हैं चीज़ें और फिर उसके हिसाब से वो काम होती हैं। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन परमिट्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय मैचिंग वर्क विद द टैलेंट, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, परमिट्स होता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके, बाय मैचिंग वर्क विद द टैलेंट, ओके, मतलब सही सूटेबल टैलेंट्स को सही जॉब परफॉर्म करके उसको असाइन करके दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन अ ग्रुप एक्टिविटीज टू इक्विवेलेंट सोशल स्ट्रक्चर। अ हार्मोनियस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनेबल्स द एंटरप्राइज टू डू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अंडर में लेके आते हैं। साउंड ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग, आइडियाज, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। और फिर साउंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या होता है, इनोवेशन करता है, क्रिएशन करता है और तरह तरह के एक टेक्नोलॉजी को लेके आता है। तो ये था सेकंड फंक्शन, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड है क्या, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग, अंडर स्टाफिंग वी डू द सो मेनी थिंग्स, ठीक है, मतलब कैसे हम एक अच्छे स्टाफ को लेके आते हैं अपने फॉर्म में और फिर वो कैसे चीज़ों को परफॉर्म, एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो सबसे स्टाफिंग में एक सुटेबल स्टाफ फॉर द कंसर्न, ये चीज़ें होनी चाहिए, ओके। सबसे पहले क्या, मैन पावर प्लानिंग होती है, मीन्स क्वालिटी ऑफ मैन पावर, ठीक है ना। फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड क्वालिटी, मतलब एक अच्छे क्वांटिटी में अच्छे नंबर्स में होनी चाहिए, फिर अच्छी उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, सिलेक्शन को उनका कैसे करना है, क्या प्लेसमेंट देना है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मीन्स उनको अवेयर करना है, मीन्स उनको बताना कि आपको कैसे उनको मोटिवेट करना है, ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, फिर अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र होते हैं, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, फिर प्रमोशन होता है, फिर ट्रांसफ़र उनका अगर ज़रूरत पड़े तो जहाँ पे जिस हमको जैसा पोस्ट खाली होता है उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, क्या उनका परफेक्ट रेम्यूनरेशन होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ों को हम अंडर स्टाफिंग में कंट्रोल करते हैं या देखते हैं। ये भी एक अलग चैप्टर है, इसको हम देखेंगे आगे। क्या है फिर नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस which actuates and members of the organization to work efficiently and effectively for the attainment of the desired objectives. Some important definitions of the director are given below. कुछ अच्छे definitions दिए हुए हैं। Directing क्या है, directing is a complex functions that includes all those activities which are designed and encourage subordinate to work efficiently and effectively. मतलब क्या एक मतलब complex function है और जो क्या करता है, अपने इनकरेज को, सबॉर्डिनेट्स को इनकरेज करता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से अच्छे परफॉर्म करें, ओके। फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स देख लीजिए क्या है। डायरेक्टिंग इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इज एन इनिशिएटिव फंक्शन, इनिशिएट्स फंक्शंस, ओके। मतलब डायरेक्टिंग क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, चीज़ों को ध्यान देना है, काम करना है और उसको ऑन ग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं कुछ इस बारे में डायरेक्ट करते जाना है, गाइड करते जाना है। डायरेक्टिंग इज एन ऑन गोइंग फंक्शंस, डेफिनेटली। डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स प्लान इनटू परफॉर्मेंस एंड इट्स देयरफॉर क्रिएटिव, ठीक है ना। क्या करता है, डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स करता है प्लान को किस में, परफॉर्मेंसेज में, ओके। डायरेक्टिंग इज द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर, ओके। मतलब ये इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ है और ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ पे रीड करके फिर चीज़ों को उसके हिसाब से करनी पड़ती है।
डायरेक्टिंग इज द लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एक प्लानिंग एंड कंट्रोल के बीच का क्या है, एक लिंक होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे। फिर इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, डायरेक्टिंग इनिशिएट ऑर्गेनाइजेशन एक्शन एंड ब्रीथ लाइफ इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन। इफेक्टिव डायरेक्शन provide several benefits, initiate actions, improve efficiency, facilitate change, ensure coordinations, assist growth and expansion of the enterprises. Okay, my dear students, elements. Element directing is the process of guiding, supervising, leading, motivating people at work so as to achieve the desired objective. Supervision, communication, motivation and leadership are the main element of the directing. ये सब सारी डायरेक्टिंग भी एक आपको चैप्टर है जिसको हमको आगे अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके जो एलिमेंट्स हैं, पहला है सुपरविज़न, कैसे चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे, ठीक है ना, उसके कंटेंट्स हैं। फिर कम्युनिकेट करेंगे, कैसे अपने हम एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करेंगे, अपने देखे जो मैनेजर होता है उसको अपर लेवल में भी कम्युनिकेट करता है और नीचे लेवल में भी कम्युनिकेट करना, तो उसको इस हिसाब से कम्युनिकेशन प्रोसेस रखना है कि किसी को बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। तीसरा मोटिवेशन, अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करेंगे काम के लिए ताकि वो अच्छे से अच्छा काम करके दे पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मोटिवेशन, बहुत तरीके का हम, ये मोटिवेशन भी एक अलग टॉपिक है जो आगे डिटेल में दिया हुआ है, हम उस चीज़ों को पढ़ेंगे। लीडरशिप, फिर लीड करना, मतलब पूरी टीम को लीड करना, ये सारे एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। इसको पूरी टीम को लीड करते हुए एक अच्छा बेस्ट रिजल्ट देना, अपने एग्जीक्यूटर को मोटिवेट करते हुए, इस तरीके से इस चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके ना। फिर आप देखेंगे क्या, कंट्रोलिंग, एक नया टॉपिक क्या है, कंट्रोलिंग, नया न्यू फंक्शन ऑफ, नेक्स्ट फंक्शन इज मैनेजमेंट कंट्रोलिंग, मतलब सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए चलना, सब सारी चीज़ों को कंट्रोलिंग बहुत, अगर किसी चीज़ का किसी पे कंट्रोल ना हो, अगर हमारा अपने बॉडी पे कंट्रोल ना हो तो फिर क्या ये बॉडी मतलब बॉडी अच्छे से रह पाएगी, अच्छे से मतलब एक्टिव कर पाएगी, परफॉर्मेंस दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। तो हमको हर चीज़ पे हम क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं होता तब तक हम चीज़ों को बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए कि हाँ मेरा बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल तो नहीं जा रहे हैं, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस वट एवर नेसेसरी वेर एवर नेसेसरी, ठीक है ना। अगर जो भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स एक्शन लेते हैं और फिर उस तरीके से उस चीज़ों को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, और फिर उसके अगेंस्ट हम क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। सम पॉपुलर डेफिनेशंस, बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, इनको जब हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम देखेंगे क्या है। एक सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं, कंट्रोलिंग इज द मेजरिंग एंड करेक्टिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट टू इंश्योर द इवेंट कन्फर्म्स टू प्लान, मतलब सारी चीज़ों को देखना है, फिर उसके अगेंस्ट क्या करना है, करेक्टिव मेजर एक्शंस लेने हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, बहुत सारे प्रोसेस हैं इसके, स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग के। पहला क्या है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब एक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना है। देन मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। तीसरा कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड्स, फिर एक्चुअल रिजल्ट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। फिर एनालाइजिंग कॉज ऑफ डेविएशंस, फिर जो डेविएशंस जो मतलब क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशंस हैं या डेविएशंस हैं, तो उसको हमको क्या करना है, एनालाइज करना है, फिर उसके अगेंस्ट में करेक्टिव एक्शंस लेना, ये स्टेप्स होंगे। फिर बात आती है कोऑर्डिनेशंस की। कोऑर्डिनेशंस की, कंट्रोलिंग एट ग्लांस, प्रीवेसिव फंक्शंस, प्रीवेसिव फंक्शंस मीन्स, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। कंट्रोलिंग एट ए ग्लांस मीनिंग परवेसिव कॉन्टिन्यूस डायनामिक फॉरवर्ड looking and orientation function, importance achievement of goals, better utilization of resources. Okay, so you can see here process, fixing, measuring performance, comparison analysis, appropriate, simple and controlling, and then after we have to see coordinations. Coordination means, under coordination is the most important thing. There are two things. What first one is coordination and second one is cooperation. First one is coordination and second one is cooperation. Coordination means
मीन्स वेयर ऑल द पीपल थिंक्स द सेम थिंग, ऑल द पीपल्स थिंक सेम थिंग, ठीक है ना। मीन्स देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक पूरी टीम है, पूरी टीम है 11 लोगों की, ठीक है ना, और उनके सबके माइंड में एक ही बात चल रही है कि हमें इस गोल को करना है। मीन्स इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्या, सबका मेन, सबका मन, समन्वयता, इसकी मीनिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वयता, मतलब सबका मन एक ही चीज सोच रहा हो, जो कैप्टन सोच रहा हो, जो टीम का कैप्टन जो सोच रहा है वो सब एक ही चीज सोच रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। एंड कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन का मतलब एक्टिविटी होता है, परफॉर्म टू एक्टिविटी। मीन्स जैसे मान लीजिए हमारे घर में मम्मी काम कर रही, मम्मी काम कर रही, तो हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये होता है कोऑपरेशन, सहभागिता, उनके काम में क्या करना, पार्टिसिपेशन करना, उनके एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करना, इसको हम क्या कहते हैं, सहभागिता कहते हैं, कोऑपरेशन कहते हैं। लेकिन जो अब हम सोच रहे हैं वो पूरी मेरी टीम सोच रही है, वो एक ही चीज सब लोग सोच रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, समन्वयता कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। कई बार कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत सिंपल सोचना जरूरी है। बहुत लोग जब इसके बहुत स्लाइटली डिफरेंस है और बहुत बच्चे फर्क नहीं कर पाते, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया, फिर मैंने बताया समन्वयता क्या होता है, सबका जहां मन मिलता है, सब सारी चीज़ों मतलब एक ही पॉइंट पे सबका मन केंद्रित हो, सेंट्रलाइज हो, तो वो वहाँ पे हो गया कोऑर्डिनेशन। लेकिन कोऑपरेशन क्या होता है, पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज़, मतलब एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करना। तो ये बहुत अच्छे से आता है, इसको देखिएगा, ये भी एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन मीन्स हार्मोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग एंड यूनिफाइंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव। गेटिंग बोला, coordination means harmonizing, synchronizing and unifying individual efforts towards the common objective. Clear ना, ये इसका definition हो गया। According to Fuel, to coordinate is to harmonize all the activities of an organization so as to facilitate its working with its success. Okay my dear residents, सो इस तरीके से हम इस चीज़ को करेंगे, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज इट्स इनहेरेंट इन ऑल मैनेजरल फंक्शन। मतलब ये क्या है, अपना इनहेरेंट है इन ऑल मैनेजरल फंक्शंस में, होना चाहिए, सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हर देखो, अब जैसे मान लिया हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग कुछ और किया, कोऑर्डिनेशन कुछ, कंट्रोल कुछ और कर रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं, मैंने क्या कहते हैं, मोटिवेशन किसी और को दे रहे हैं, तो ऐसा क्या हो जाएगा, चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन से गोल सेट कर रखा है वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन सारे प्लानिंग में, सारे फंक्शंस में क्या होता है, सारे पॉइंट्स में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। फिर कोऑर्डिनेशंस के एलिमेंट क्या है, इट इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, it is in a continuous and dynamic process, it's a purpose to secure unity of action towards common objective, it is the responsibility of every manager, सबका दायित्व है। it does not arise spontaneously and has to be created through the deliberate efforts, खुद ही ये क्रिएट नहीं होता है, स्वतः क्रिएट नहीं होता है, इसको क्या करना, क्रिएट करना पड़ता है। मतलब जो चीज़ें सोच रहे हैं, एक मेरा जो कमांडो सोच रहा है, जो मेरा मैनेजर सोच रहा है, जो मेरा लीडर सोच रहा है, उसको हम सोचें, ये चीज़ अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ती है, जुनून पालना पड़ता है। तो ये चीज़ होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन मैंने आपको बताया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, या डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाउ इट इज़। तो आइए देखते हैं कैसे है। आप देख रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इन प्लानिंग, प्लानिंग में क्या है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मास्टर प्लान ऑफ द एंटरप्राइज एंड द प्लान ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिविजन्स, ठीक है ना। देयर शुड ऑल्सो बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज, क्लियर ना। तो इस तरीके से हमको सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेशन करना के मास्टर प्लान लेके चलना पड़ता है ऑफ द एंटरप्राइज एंड द प्लान ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिविजन, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं, डिविजन्स हैं, उन सब के बीच क्या करना पड़ता है, एक मास्टर प्लान बना के चलना पड़ता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। देयर शुड ऑल्सो बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो ऑब्जेक्टिव हैं, गोल हैं और रिसोर्सेज हैं, उन सब के बीच क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स, मीन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना चाहिए। सेम वर्क
Same work should not be assigned twice. Organization should be ineffective if there is a lack of unity between different departmental, मतलब एक ही तरीके का वर्क या सेम वर्क एक ही मतलब अलग अलग चीज़ों को नहीं देना चाहिए कि इससे क्या होता है कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, एक अलग से लैक ऑफ यूनिटी क्रिएट हो जाती है बिटवीन एम्प्लॉयज़ में। तो इस तरीके से चीज़ों को मेंटेन होना चाहिए। तीसरा क्या है, वाइल स्टाफिंग, मतलब स्टाफिंग के टाइम भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। क्या, कोऑर्डिनेशन इज अचीव बाय द बैलेंसिंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज विद द जॉब असाइन टू देम। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इस पॉइंट को। कोऑर्डिनेशन जब स्टाफिंग होती है तो कोऑर्डिनेशन इज अचीव बाय द बैलेंसिंग द स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज विद द जॉब असाइन टू देम। ठीक है ना, तो स्किल्ड और जो भी हम स्टाफ को अपॉइंट कर रहे हैं उसके एबिलिटीज़ में क्या होता है, एक बैलेंस होना चाहिए, मतलब जिस काम को अपॉइंट कर रहे हैं उसके और उसके बीच में चीज़ें आनी चाहिए, उसको क्या परफॉर्म करना है, ये सब सारी चीज़ें। ओके, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर यूज टू इंश्योर हारमोनियस वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, मतलब ये सब सारी चीज़ों को एलिमेंट्स हैं इसके सारे, और पूरे पूरे फॉर्म को क्या करता रहता है, यूनाइट किया रहता है, हारमोनाइज किया रहता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज अचीव बाय इंश्योरिंग द एक्चुअल रिजल्ट कन्फर्म टू प्लान्स एज क्लोजली एज पॉसिबल। ठीक है ना, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो कंट्रोल, ड्यूरिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज अचीव बाय इंश्योरिंग द एक्चुअल रिजल्ट, मतलब एक्चुअल रिजल्ट को इंश्योर करना है, कन्फर्म टू प्लान एज क्लोजली एज पॉसिबल, जो प्लान है उसको एक तरीके से कन्फर्म करके और अब बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट को गेन करना। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सब सारे मैनेजरियल फंक्शंस हैं, POSDCRB, अभी आगे भी है। तो ये सब सारे पॉइंट्स ऐसे यहाँ इस चैप्टर में बहुत शॉर्ट में दिए हुए हैं, लेकिन आगे वाले चैप्टर में पूरा ये सब एक एक टॉपिक है, तो इसलिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर से प्लानिंग एक अलग चैप्टर में, ऑर्गेनाइजिंग एक अलग चैप्टर में, इस तरीके से हम पढ़ते चलेंगे। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।